بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جمعرات کو بیوی کی دو چیزیں پکڑنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جمعرات کو بیوی کی دو چیزیں پکڑنے سے رزق میں برکت، گھر میں رحمت، دل میں سکون آتا ہے اور ساتھ میں زندگی سے بے برکتی اور نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جمعرات کو بیوی کی دو چیزیں ضرور پکڑا کرو۔ جمعرات کو بیوی کی پکڑنے والی دو چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ناظرین، کہتے ہیں نا کہ گھر صرف اینٹوں سے نہیں بنتا، دلوں سے بنتا ہے، اور دل صرف باتوں سے نہیں جڑتے، عمل سے جڑتے ہیں۔ اور کچھ عمل تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ دکھنے میں تو چھوٹے لگتے ہیں مگر ان کا اثر تقدیر بدل دیتا ہے۔ آج کی بات بھی ایسی ہے، ایک راز، ایک چھپی ہوئی کنجی، ایک چھوٹی سی بات جس میں رزق کا دروازہ بھی ہے، سکون کا دروازہ بھی ہے اور محبتوں کی بہار کا دروازہ بھی شامل ہے۔ اور آخرکار یہ راز کیا ہے؟ یہ راز ہے کہ جمعرات کو بیوی کی دو چیزیں پکڑنے سے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جی ہاں، جمعرات کو بیوی کی دو چیزیں پکڑنے سے رزق میں برکت اور گھر میں رحمت اترتی ہے، زندگی سے نحوستیں دور ہوتی ہیں اور دل کے اندر سکون کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ اگر سوال یہ ہے کہ وہ دو چیزیں آخر کیا ہیں، ایسی کون سی دو چیزیں ہیں کہ رب کی رحمتیں دروازوں کے پاس ہوتی ہیں، ایسی کون سی دو چیزیں ہیں کہ گھر کے ماحول کو بدل دیتی ہیں اور حالات کروٹ لے لیتے ہیں؟ بیوی کی ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو پکڑنے سے جہاں پہلے لڑائی تھی وہاں مسکراہٹ آ جاتی ہے، جہاں پہلے کڑواہٹ تھی وہاں مٹھاس اتر آتی ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگ رزق کے لیے دور بھاگتے ہیں، پیر فقیر کے پاس جا کر اور شیطانی عمل وظیفے کر کے اپنے دین و ایمان کو خراب کرتے ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ رزق کا دروازہ تو گھر کے اندر ہی ہوتا ہے اور اس دروازے کی کنجی اکثر شوہر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ بیوی کے پاس ہوتی ہے۔ اور جب شوہر جمعرات کے دن بیوی کی یہ دو چیزیں پکڑ لیتا ہے تو رزق صرف بڑھتا نہیں بلکہ جڑ پکڑ لیتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، برکت بن جاتا ہے۔ اب دل تو سوچے گا ہی کہ آخر وہ دو چیزیں کیا ہوں گی؟ ایسی کون سی دو چیزیں ہیں کہ فرشتے لکھنا شروع کر دیں؟ ایسی کیا چیز ہے کہ شیطان بھاگ جائے؟ ایسی کیا چیز ہے کہ گھر کی دیواروں میں محبت کی خوشبو سما جائے؟ ایسی کیا چیز ہے کہ خالی جیب بھر جائے، خالی دل بھر جائے، خالی گھر بھر جائے؟ اور جب جمعرات کو بیوی کی یہ دو چیزیں پکڑی جاتی ہے تو یہ عمل عبادت میں بدل جاتا ہے۔ اور یہ بات ایسی ہی نہیں کہی جاتی، یہ محبت کے نظام کا قانون ہے۔ جہاں عزت دی جاتی ہے وہاں رزق ٹھہر جاتا ہے، جہاں محبت دی جاتی ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں، جہاں رشتے کی حفاظت کی جائے وہاں بے برکتی کبھی نہیں ٹکتی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون اترے، دلوں میں محبت جمے اور رزق بہنا شروع ہو جائے تو پھر جمعرات کو بیوی کی یہ دو چیزیں ضرور پکڑنا۔ اب آپ کا دل کہہ رہا ہوگا کہ جلدی بتاؤ وہ دو چیزیں آخر ہے کیا؟ جناب صبر کیجیے، بس اگلا لمحہ اور راز کھلنے والا ہے، اور جب کھلے گا تو دل کہے گا اصل چیز تو بہت قریب تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ محترم ناظرین، ایک میاں بیوی کی زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی۔ گھر میں خوشیاں تھیں، بچوں کے چہرے پر معصوم مسکراہٹیں تھیں اور رزق یوں بہتا تھا جیسے چشمہ خود بہنے کا راستہ جانتا۔ کاروبار برکت والا تھا، گھر میں سکون تھا، دلوں میں محبت تھی، شوہر بھی محبت کرنے والا، بیوی بھی پاسبان تھی، دونوں کی زبان سے شکر ٹپکتا تھا۔ مگر دھیرے دھیرے حالات بدلنے لگے، کاروبار میں نقصان ہونے لگا، رزق کی تنگی آن پڑی۔ جو ہنستا کھلتا گھر تھا اس میں خاموشی اور پریشانی گھر کرنے لگی۔ بچوں کا رویہ بدل گیا، نرمی کی جگہ سختی آ گئی۔
फरमाबरदारी की बजाय बेअदबी ने जगह ले ली। घर में बेबरकती फैलती गई। ऐसा लगा जैसे रहमत के दरवाजे बंद होते चले जा रहे हों। शौहर की रातें भयानक हो गई। वह चुपचाप बैठता, सर पकड़ लेता, सोचता कि आखिर ऐसा क्या हो गया, कौन सी कमी रह गई, किस जगह पर बुरी नज़र लगी, क्या गजब हुआ। एक दिन वह शख्स एक नेक बुजुर्ग के पास गया। कहने लगा, बाबा जी, हमारी शादी बहुत मोहब्बत से हुई थी। घर था, रिज़्क था, सुकून था, अल्लाह ने औलाद भी दे दी थी, लेकिन न जाने अब सब कुछ बिखर गया है। कारोबार तबाह हो गया है, रिज़्क जैसे रूठ गया है, घर में हर वक्त बेसुकूनी है, औलाद नाफरमान हो गई है, मैं टूट चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर कहाँ गलती हो गई। बाबा जी मुस्कुराए, मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्की सी आह भरी। फिर बोले, बेटा, कभी कभी घर की बेबरकत की वजह यह नहीं होती कि बाहर का कोई दुश्मन बर्बाद कर रहा हो, बल्कि वजह यह होती है कि घर के अंदर मोहब्बत और दिलों की नरमी कम हो जाती है। और जहाँ मोहब्बत कम हो जाए, दिलों में सख्ती पैदा हो जाए, तो वहाँ रहमत रुक जाती है, और जहाँ रहमत रुक जाए वहाँ रिज़्क तंग हो जाता है। शौहर खामोश रह गया। दिल में दर्द बस फैलता गया। बाबा जी आगे बोले, बेटा, आज जुमेरात है, जाओ और जुमेरात को बीबी की 2 चीज़ें पकड़ लो। जुमेरात को बीबी की 2 चीज़ें पकड़ने से रिज़्क में इजाफा होता है, घर में सुकून उतरता है, रहमतों का नुज़ूल होता है और नौसत और बेबरकती ख़त्म हो जाती हैं। शौहर शर्मा सा गया, सिर झुक गया, दिल में एक हल्का सा पर्दा का एहसास आया। हिम्मत करके पूछ बैठा, बाबा जी, कौन सी 2 चीज़ें? बाबा जी मुस्कुराए और वह मुस्कुराहट दिल की गहराई में उतर गई। कहने लगे, पहली चीज़, बीबी के हाथ को मोहब्बत से पकड़ना। कुछ चीज़ें अल्फाज से नहीं, छू लेने से बोलती है, और रिश्तों में सबसे ज़्यादा वजन उसी लम्हा है, छूने का होता है, जो नरमी, एहतराम और मोहब्बत से किया जाए। जुमेरात के दिन रूहानी दिन है, रहमतों का दरवाज़ा खोलने वाला दिन है, और उसी दिन जब शौहर बीबी के हाथ को मोहब्बत से पकड़ता है तो यह अमल सिर्फ हाथ पकड़ना नहीं रहता, यह दिल को पकड़ने का अमल बन जाता है। यह लम्स बताता है कि तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो और हम एक हैं, और जिस घर में दिल एक हो जाए वहाँ रिज़्क खुद चल कर आता है। नाज़रीन, ये देखने में आता है कि अक्सर घरों में मोहब्बत होती है मगर इजहार नहीं होता। शौहर बीबी के लिए फ़िक्र रखता है, थकता भी उसके लिए है, मेहनत भी उसके लिए करता है, मगर बीबी के दिल को पता कैसे चले, उसके एक हाथ पकड़ लेने में वह सब कुछ छुपा होता है जो जुबान कह नहीं पाती। जब जुमेरात की शाम या रात को शौहर बीबी के हाथ को आहिस्ता से थामता है तो फरिश्ते उस घर के दरवाजे पर आकर रहमत लिखने लगता है, क्योंकि जुमेरात को बीबी की 2 चीज़ें पकड़ने से रिज़्क में इजाफा होता है, और यह इजाफा ऐसे ही नहीं आता। यह दिलों की सुलह, दिलों की तस्वीर और दिलों की गिरह खुलने के बाद आता है। यह हाथ पकड़ना बीबी के दिल में यह एहसास जगा देता है कि मैं तन्हा नहीं, मेरा कोई है जो ख्याल रखता है, और एक मुतीन दिल के साथ की गई दुआ वो होती है जो कभी लौटती नहीं। और जब बीबी के दिल की दुआ उठती है तो आसमान के दरवाजे भी नरम पड़ जाते हैं। शौहर के हाथ में जब बीबी का हाथ आता है तो उस घर की हवाओं में सुकून आता है, घर की दीवारें भी मोहब्बत की खुशबू महसूस करती है, और यकीन जाने जहाँ सुकून उतर आए वहाँ बरकत खुद ठहर जाती है। यह बात सिर्फ अल्फाज नहीं, ज़िंदगी का तजुर्बा है। ऐसी मोहब्बत जिसमें नफ्स नहीं दिल हो, ऐसा लम्स जिसमें ख्वाहिश नहीं शफ़क़त हो, ऐसी कुर्बत जिसमें गलवा नहीं रफ़ावत हो, वह घर जन्नत के टुकड़ों में बदल जाता है। और यही वजह है कि जुमेरात को बीबी के हाथ को मोहब्बत से पकड़ने से रिज़्क में इजाफा होता है।
तंगस्ती के बादल हटते ही और अल्लाह की रहमत घर की छत पर उतर आती है, क्योंकि जहाँ मोहब्बत जम जाती है वहाँ रिज़्क बहना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, बीबी की चादर या दुपट्टे के किनारे को अदब से पकड़ कर दुआ करना। कुछ अमल ऐसे होते हैं जो नज़र छोटे आते हैं मगर अर्श तक रास्ता बनाते हैं, और ऐसे अमाल में से एक अमाल है कि जुमेरात के दिन बीबी की चादर या दुपट्टे के कोने को अदब से पकड़ कर दुआ करना। यह अमल सिर्फ एक कपड़े को छूने का नाम नहीं, बल्कि यह सारी मोहब्बत, इज्जत और रिश्ते के तक़द्दुस को हाथ में लेने का अमल है। सोचो, एक शौहर जब बीबी की चादर के कोने को एहतराम के साथ पकड़ता है तो वह सिर्फ कपड़े का एक हिस्सा नहीं पकड़ रहा होता, वह उस घर की इज्जत को पकड़ रहा होता है, उस रिश्ते की पाकीज़गी को पकड़ रहा होता है, उस मोहब्बत की हुर्मत को पकड़ रहा होता है। जब वह उस लम्हे में से दिल से कहता है कि ए अल्लाह, इस घर को अमन दे, सुकून दे, रिज़्क में खुशहाली अता फरमा, तो यह दुआ सिर्फ जुबान की दुआ नहीं होती, यह दिल की सदा बन जाती है और दिल की सदा अर्श को हिला देती है। यह चादर या दुपट्टा यह सिर्फ लिबास नहीं होता, यह बीबी की हया, उसकी इज्जत, उसका मुकाम और उसका वक़ार होता है। और जिस शौहर ने अपनी बीबी की इज्जत को इज्जत दी, अल्लाह ने उसके रिज़्क में अपनी रहमत शामिल कर दी, क्योंकि अल्लाह उसी घर में रिज़्क बसाता है जहाँ औरत की इज्जत महफूज होती है। इसलिए यह अमल रूहानी खजाने की कुंजी है। और जब जुमेरात को बीबी के दुपट्टे का कोना पकड़ा जाता है तो यह दुनिया नहीं देखती मगर आसमान देख लेता है, ज़मीन नहीं सुनती मगर फरिश्ते लिख लेते हैं। यह ऐसा है जैसे बीबी की चादर का कोना अल्लाह के अमान में दे दिया गया है, और जिस घर की चादर अल्लाह के अमान में हो उस घर को बुरी नज़र नहीं लगती, उस घर में बरकतें उतरती है, उस घर की छत पर रहमतों का साया ठहर जाता है, घर में सुकून उतरता है, तंगस्ती के पर्दे फटते हैं और मोहब्बत का नूर बढ़ता है। यह अमल कोई रस्म नहीं, यह दुआओं के दरवाजे खोलने की कुंजी है। कहते हैं ना कि घरों में रहमतें उस वक्त तक नहीं उतरती जब तक दिलों के दरवाजे नरम ना हो, और दिल नरम होते हैं मोहब्बत, एहतराम और शुक्रगुजारी से। लेकिन मुश्किल यह है कि इंसान की मेहनत जितनी सख्त होती है उसके दिल की मिट्टी उतनी ही सख्त हो जाती है, और जब दिल सख्त हो जाए तो घर में सुकून, बरकत और रहमत के दरवाजे बंद होने लगते हैं। रिज़्क कम नहीं होता, बस उसकी बरकत उठ जाती है। कभी कभी मसला तकदीर का नहीं होता बल्कि मसला रवैये का होता है। बीबी का दिल अगर टूट जाए तो घर टूट जाता है, बीबी का दिल जुड़ जाए तो घर जन्नत बन जाता है। जुमेरात के दिन बीबी का हाथ मोहब्बत से पकड़ना और चादर के कोने को अदब से पकड़कर दुआ करना, यह अमल छोटा है मगर असर बहुत बड़ा है। यह अमल सिर्फ रिज़्क नहीं बढ़ाता, यह दिल में नरमी वापस लाता है और यह औलाद में फरमाबरदारी वापस लाता है। यह घर में सुकून वापस लाता है, यह घर बरकत और रहमत को लौटाता है। और याद रखो, बरकत पैसे में नहीं होती, बरकत दिल में होती है, और जिस दिल में मोहब्बत और इज्जत हो वह दिल कभी खाली नहीं रहता। अल्लाह पाक हमारे दिलों की सख्ती को दूर फरमा और परेशानियों को दूर कर मोहब्बत व सुकून पैदा फरमा। आमीन।